I, when we operate plus m, this is what way to denote addition modulo m. A plus m, b is equal to r. Sometimes they denote it like this: a plus in circle, b is equal to r. So plus in circle is what read as addition modulo m. But in general, they are asking in your question papers in this notations plus m only, right? Where r is the remainder, when a plus b is divided by m. Examples अब हम लोग बनाएंगे. एग्जाम्पल बनाओ. मैंने यहाँ लिखा था 4 plus 3 with 7, मतलब plus addition modulo 3. You are operating between 4 and 7. So actual sum of 4 and 7 is 11. When we divide it by 3, remainder will be 2. It means its output is what? 2. Right? Second example we will prepare. 8 plus 12 under modulo 5. 8 plus 12 is what? 20. When we divide by 5, remainder is 0. Are you correct? By this way you can learn multiplication modulo m also. Right? Multiplication modulo m we denote under this cross m notation is equal to r. Where r is what? Remainder when a into b is divided by m. Examples you can prepare. Bolo jara. 3 cross 5 with 7. That is equal to 7 into 3 is what? 21. When we divide by 5, remainder is 1. Second example, 4 cross 3 with 5. 2. 5 into 4, that is 20. When we divide by 3, remainder is 2. करेक्ट है. और मैंने तुम लोगों को एक नोट कराया है बात कि जेड एम इज व्हाट? सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो एम. ये कलेक्शन किस चीज का है सर? पॉसिबल रिमाइंडर्स का. व्हेन वी डिवाइड वन नंबर बाय एम, पॉसिबल रिमाइंडर will start from 0 and run up to m minus 1. In the case of Z5, if you are dividing by 5, so possible remainder will run up to 4, starting from 0. So what comes here? Bolo 0, 1, 2, 3 and 4. Correct? Yes. One point is very important. Note. Zm plus m is an abelian group with respect to addition modulo m, right? And Zm minus singleton with cross m operation is an abelian group with respect to multiplication modulo m if and only if m is prime integer. Second problem, based on that addition and multiplication modulo m, let g is equal to z6. It means it is the set of integers modulo 6 consisting 6 elements starting from 0 and up to 5. Correct? First part is what? Prepare a composition table with respect to addition modulo 6. Sometimes they ask it what under this notation, and sometimes they write in words like this: addition modulo 6. Prove that G is an abelian group, and third part is what? Is G cyclic? We want to check. Prepare this composition table by its as usual procedure. As you know, here, इधर देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 upon this horizontal line, vertically 0, 1, 2. आप लोगों को पता है सर 0 plus 6 with 0 is what? 0. First row will remain same because of 0, right?
In second row, here 1 plus 0 is what? 1, no doubt. But 1 plus 5 is basically 6. When we divide by 6, remainder is 0. So this is what? 0. अरे सबने समझा क्या? एक एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ. This is 2. इधर देखो 3 plus 5, that is what? 8. Basically it is 8. When we divide by 6, remainder is 2. Right? तो कंपोजिशन टेबल तो हम लोगों ने विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6 बनाया है ना. तो हमको क्या लिखना है? पॉसिबल रिमाइंडर्स व्हेन सम ऑफ एवरी 2 इज व्हाट डिवाइडेड बाय 6. सम ऑफ एवरी 2 इज डिवाइडेड बाय 6. अरे करेक्ट है. अब आपने एक टेबल तो बना लिया. अब हम लोगों को डिस्कस क्या करना है? टू बी एन अबिलियन ग्रुप इट मस्ट फॉलो हाउ मेनी प्रॉपर्टीज? 5 प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड इज एसोसिएटिविटी, third is identity element exists, fourth is inverses exist, and fifth is commutativity. Right? देखो अभी हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि सिस्टम इज एन अबेलियन ग्रुप. सिस्टम क्या है हमारा? अलजेब्राइक सिस्टम क्या है? दैट सेट जी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6. अरे राइट है, एडिशन मॉडुलो 6. तो सिस्टम को अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए वी रिक्वायर टू प्रूव 5 प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? क्लोजर प्रॉपर्टी. एंड क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या देखते हैं? सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस कंपोजिशन टेबल, देख रहे हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट जी ओनली, देयरफॉर जी होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी. ये एकदम सिंपल टेक्निक है. मैं एक बात तुम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब तुम जानते हो, और वो क्या जानते हो? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स इन जी, ए स्टार, यहाँ ए स्टार बी मस्ट बिलोंग्स इन, ए स्टार बी बिलोंग्स इन जी, और दिस यू कैन से ए एडिशन मॉडुलो बी बिलोंग्स इन जी. आप इधर देखो, कोई 2 एलिमेंट आप लेकर के अलग अलग चेक करते रहे तो कितना एग्जाम्पल बनाएंगे? कोई 0 1 लेगा, कोई 0 2 लेगा, कोई 1 2 लेगा, कोई 1 5 लेगा. राइट है कि नहीं? सारी बातों को एलिमिनेट करने के लिए इन जनरल लोगों ने, मैथमेटिशियंस ने क्या एक टेक्निक बता दिया कि आप कंपोजिशन टेबल बना लो और इसमें तुमको हर तरीके से सम ऑफ एवरी 2 एलिमेंट मिल जाएगा. सम ऑफ एवरी 2 एलिमेंट मिल जाएगा. और देखते क्या है? दीज आर द आउटपुट्स एंड एवरी आउटपुट ऑफ दिस टेबल बिलोंग्स इन सेट जी, देयरफॉर जी होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी. अरे करेक्ट है. एसोसिएटिविटी में मैंने लिया, कोई 3 एलिमेंट ले लो. मैंने ले लिया 2 4 5 बिलोंग्स इन जी, और तुमने क्या देखा? 2 plus 6, 4 plus 6 with 5, 4 plus 6 with 5, 4 and 5. Their sum is what? 3. अरे करेक्ट है. 2 and this is what? Plus 3. Under addition मॉडुलो 6 is what? 5. अब इधर देखो, 2 plus 4, that is what? 0. and plus 5, either way result is same. इसका मतलब plus 6 ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, plus 6 ऑपरेशन इज एसोसिएटिव. और इस प्रकार से 2 प्रॉपर्टी पूरी हुई. सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एवरी ए बिलोंग्स इन जी, फॉर एवरी ए बिलोंग्स इन जी, a plus 6 with 0 is equal to a is equal to 0 plus 6 with a. ये ट्रू है. कैसे ट्रू है? मैंने बताया कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है यहाँ पर, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए ना बहुत बार तकलीफें आती हैं. आइडेंटिटी एलिमेंट रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है कि आप ये देखो कौन सा ऐसा रो है इन विच ऑल दीज एलिमेंट्स आर व्हाट? सेम, इन द सेम ऑर्डर. तो कहाँ मिल रहा है? फर्स्ट रो में. अरे राइट है, देख रहे हैं, फर्स्ट रो में है. एंड it is what? Identical with its corresponding column. So intersection of these two is what? 0. So this 0 is identity element. ये आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट टेक्निक है फ्रॉम कंपोजिशन टेबल. कंपोजिशन टेबल से ना इससे बढ़िया टेक्निक कुछ नहीं है. बड़े आराम से पता लग जाता है कि 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है. आगे देखते हैं सर. इनवर्सेस.
इन्वर्सेस पता करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया और अभी फिर से बता रहा हूं। सिंस 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इट इज प्रेजेंट इन एवरी रो और एवरी कॉलम, फिर से चेक करो, फर्स्ट रो में है, सेकेंड रो में है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एवरी रो, देयरफॉर इन्वर्सेस एग्जिस्ट। अब इधर देखो करस्पॉन्डिंग टू दी, इधर देखो ये 0 है ना, ये किस किस का आउटपुट है, 5 विथ 1, इसका मतलब 5 का इनवर्स 1, इसका मतलब 1 का भी इनवर्स 5। अरे करेक्ट है, आइदर वे वी कैन से। और इस प्रकार से हमने सबका इनवर्स लिख दिया और ये क्या पता लगता है, इनवर्सेस ऑफ ईच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेट G। ये थी सबसे सिंपल टेक्निक। कैसे, अगर आपके पास कंपोजिशन टेबल अवेलेबल है तो वहीं से चेक करना चाहिए। कैसे चेक करना चाहिए कि फर्स्ट रो इज व्हाट आइडेंटिकल विथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज व्हाट आइडेंटिकल विथ सेकंड कॉलम, थर्ड रो इज व्हाट आइडेंटिकल विथ, it means what we see, every row is what identical with its corresponding column, therefore operation is commutative। मैंने ऐसा तुम्हें चेक करने के लिए बताया, लेकिन आप अपना समय बचाने के लिए आपने चेक कर लिया तो लिखने का काम कुछ इस प्रकार से कर सकते हो, a plus 6 with b is equal to b plus 6 with a, therefore plus 6 is commutative। Since operation is commutative and it follows already previous 4 properties, therefore it is a abelian group with respect to plus 6। करेक्ट है। अब हम लोगों को देखना क्या है सर, ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेटर नहीं होता, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये जनरेटर नहीं हो सकता। तो 0 को छोड़ करके अगला एलिमेंट क्या पढ़ते हैं हम लोग, 1 raised to 1 is 1 and 1 square is 2। अभी तक हम लोग एक ही बात जानते थे, किसी से 1 स्क्वायर पूछोगे तो क्या बोलेगा 1 क्यूब बोलोगे तो क्या 1 रेज टू एनी नंबर क्या बोलेगा। इसका मतलब जानते हो 1 रेज टू सम नंबर का मतलब लोग अपना बेसिक डिफिनेशन क्या समझते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था ना, डोमेन में डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आपका इंटीग्रल पावर of one number defines what your operation will be operated that much times। एक एग्जांपल लेता हूं, अगर किसी ने अल्फा रेज टू एल लिख दिया, इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू स्टार दिस अल्फा स्टार हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स। ये बात सबको समझ में आ रही है। इसका मतलब यहाँ हमारा ऑपरेशन क्या है, +6 है। ऑपरेशन क्या है, +6 है। इसका मतलब 1 स्क्वायर मीन्स 1 + 6, 1 इज इक्वल टू 2, राइट है। फिर देखो 1 क्यूब इज 1 + 6, 1 + 6, 1 इज इक्वल टू 3। और इस प्रकार से आप देख रहे हो 1:5 क्या आता है, 5, एंड 1:6 बेसिकली आएगा 6। व्हेन वी डिवाइड बाय 6 रिमाइंडर इज 0 एंड व्हाट वी सी 1 जनरेट every element of this set, therefore 1 is the generator and group is cyclic, correct।